Ampere's law is being done. Ampere's law. So this is the law used to find magnetic field at any point due to charge distribution, current distribution. You can find the magnetic field using Biot-Savart law, Biot and Savart law, and you can also find the magnetic field using Ampere's law. Clear? Example, using Coulomb's law E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. So this is the Coulomb law now. And you can easily find the electric field using this. Similarly, using Biot-Savart law, dV is equal to mu naught upon 4 pi I dl cross r vector r over r square. You can find magnetic field using this law. And using Gauss law, integration E dot L ds is equal to Q inside upon epsilon. In the Gauss law, and using this you can easily find electric field. So there is a law in magnetic state which is equivalent to Gauss law in electrostate, and using that law you can easily find the magnetic field, and that is called the Ampere's law. And Ampere's law is what? Integration V dot dA is equal to mu naught I enclosed. क्लियर? देखो तो नेचर की ब्यूटी को देखो, यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, and that is cyclic integration, closed integration, but integration is over area. Here there is also integration, and that is cyclic, but this integration is over length. This integration is also cyclic, but this is over length, and but this is over area ना. देख रहे हो कितना सिमेट्रिकल है? इधर जो फील्ड ओवर है, इधर जो फील्ड ओवर है. In electrostate this is electric field, and in magnetostate this is magnetic field. Similarly, there is a constant over here, epsilon naught, and there is also constant over here which is called the mu naught. And there is a source inside the Gaussian loop. There is a source inside the Gaussian loop. Again, there is a source which is I enclosed, and this is inside the Amperian loop. Amperian. So first of all, we discuss this. So this is the symmetrical. मतलब नेचर ऑफ सिमेट्री इधर इलेक्ट्रोस्टेट में जो भी काम किया पैरेलल देयर इज समथिंग लाइक व्हाट इन मैग्नेटोस्टेट ना, इधर Coulomb लॉ, इधर Biot-Savart लॉ, इधर Gauss लॉ, इधर Biot-Savart लॉ, Ampere's law. Clear? So you define this law, what is the meaning of this, how to play with this equation, like how can you find the magnetic field with this equation. Clear? So करो इसको, फिर मैं करवाता हूँ इस इक्वेशन को डील करते हैं. So what this statement line integral of magnetic field around closed Amperian loop. Closed Amperian loop is equal to the product of mu naught and total current inside the loop. Clear? Inside the, and this law we are discussing this law for vacuum. मटेरियल के लिए अलग होगा, जैसे गॉस में वैक्यूम के लिए अलग था, मटेरियल के लिए अलग था, ऐसे ही यहाँ बात में पढ़ेंगे मटेरियल के लिए. क्लियर? सो व्हाट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज्ड लूप
closed abelian loop is equal to the product of mu naught and total current inside the loop. So what if this is a current carrying conductor, so this will produce some magnetic field over here. Clear? So let us assume B over here is B, the magnetic field over here is B. Clear? तो लूप पहले तो कोई पॉइंट फिक्स करो. क्लियर? कोई पॉइंट फिक्स कर लो. क्लियर? इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? B डॉट dS is equal to mu naught I inside ना वही inside B dot dS. This is what closed loop. Line integral of magnetic field. So this is B dot dl is the B integration. B dot dl is the line integral. Integration B dot dl is the line integral of line. Dl is the line ना, line मतलब dl length. So dl is the line and B is the magnetic field. So this is the line integral of magnetic field ना. Line integral of magnetic field ना. जैसे इसको बोलेंगे क्या? E dot dl. एरिया इंटीग्रल, एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ. So meaning of this is B dot dl is what? B dot dl is the line integral of magnetic field around a closed loop. Means your loop is closed and ये लेंथ है तो क्या है? क्लोज लूप का लेंथ है. क्लियर? तो यहाँ क्या लगा बाबू? साइकिल. जैसे यहाँ क्लोज सरफेस साइकिल लगा is equal to product of mu naught and I inside the loop. So ये जब ये सब मैथ्स के सामने आएगा ना, तो ये सब मैथमेटिकल फॉर्म. Now how to deal with this equation or how to check this equation? इसलिए करना क्या है बाबू? With the help of this law, you can find magnetic field. Clear? So how to deal with this equation? There are some procedures, some rules. Clear? And rule is what? कि मान लीजिए current carrying wire है and you have to find magnetic field at point B. So this point magnetic field find करना है. You have to draw a amperian loop through that point and that should be closed. That should be closed. So this is point B and you have to find magnetic field at that point B. So the first rule is draw a loop passing through point. This point पे find करा मैंने उस point से खुद draw करो. Clear? And also loop should be symmetrical to current distribution. Current loop जो तुम्हारा distribution हो गया current distribution वहाँ Gauss one है your surface should be symmetrical to charge distribution. Similarly here your loop should be symmetrical to current distribution. ऐसा एम्पियर में नहीं बोला था, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं. तुम अपने मन से कोई सा रूप ले सकते हो. जैसे बाबू मान लो कि ये करंट कैरिंग वायर है, ये इधर ये मान लो ये वायर है, ये वायर है मेरे हाथ में ऐसे, ये वायर है, ये इसमें करंट जा रहा है. कोई दिक्कत? करंट इधर जा रहा है तो लूप इस पॉइंट पे फाइंड करना है, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे. तो क्या करोगे? एक इससे एक लूप ड्रॉ करोगे. तो एंड दैट लूप शुड बी सिमेट्रिकल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि लूप के हर एक पॉइंट से चार्ज का डिस्टेंस कम चाहिए, सेम होना चाहिए. नहीं इस करंट का डिस्टेंस कम है, सेम होना चाहिए, वायर का डिस्टेंस सेम होना चाहिए. तो एम्पियर में ऐसे नहीं बोला था. तुम लूप जो है ना ये वायर है पर इस पॉइंट से लूप जाना है तो तुम ऐसे ऐसे तुम्हारी मर्जी कैसे भी लूप ले सकते हो. रेक्टेंगल ले सकते हो, सर्कल ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो या कोई कर्व टाइप ले सकते हो. एम्पियर में ऐसा मैं बोला था. हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि योर करंट शुड डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल टू योर लूप शुड बी सिमेट्रिकल टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों? क्योंकि लेंथ फाइंड करना क्या होगा? इजी होगा. जैसे एरिया अगर सर्किल है तो इजीली लेंथ मिल जाएगा 2πr. अगर रेक्टेंगल है तो इजीली क्या मिल जाएगा? 4 ऑफ रेक्टेंगल है तो क्या होगा? 2abl + b हो जाएगा. अगर स्क्वायर लेंगे तो 4 into साइड हो जाएगा कि नहीं? तो अपना काम आसान करने के लिए हमने एक कंडीशन लगा दिया कि योर करंट शुड बी योर लूप शुड बी सिमेट्रिकल टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसके लिए क्या होगा? अपना इस पॉइंट पे इस पॉइंट से लूप ड्रॉ करना है और ये वायर है तो क्या होगा? अपना लूप सर्कुलर ना, ये लूप विल बी सर्कुलर. तो क्योंकि सर्किल के हर एक पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या होगा? सेम है. सो फॉर दिस योर लूप विल बी सर्कुलर. कोई दिक्कत? तो इस पॉइंट से बाबू एक सर्कुलर लूप ड्रॉ करें.
लेट अस न्यू रेडियस कितना होगा, वही लूप का जो पॉइंट का कंडक्टर से रेजिस्टेंस होगा, दैट इज द रेडियस ऑफ द लूप ना, इन ऑर्डर टू सो वी डिफाइन सर्कुलर लूप। क्लियर? तो पहला टास्क। सेकंड ओरिएंट द लूप। लूप को ओरिएंट करो। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होगा कि बाबू लूप तुमने जो किया है, मान लो कि ये है, ये कंडक्टर है और इसके चारों तरफ से ये लूप है, ठीक है बेटे, ये लूप हो गया ना, कंडक्टर और ये लूप। तो लूप को ओरिएंट करने का मतलब क्या होगा, लूप इधर से भी जा सकता है, ओरिएंट और ओरिएंटेशन इससे भी हो सकता है, तो लूप को ओरिएंट करना है एंड दैट इज योर चॉइस, किधर पे ओरिएंट करो तुम्हारी मर्जी है, किधर ओरिएंट करना है, कोई सा ले लो, रिजल्ट सेम आएगा, लूप को ओरिएंट करो। ओरिएंट मान लो इधर कर देता होगा, क्लियर, इधर कर देता ओरिएंट, पहले इसको बताऊंगा। v डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू, इसको डीप करोगे इजीली हो जाएगा, इसमें कोई और नहीं, लेकिन अगर y कसम से थोड़ा ऐसे लिख दूं, v डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रेशन j डॉट n dx, फिर तो अब ये बिना रूल पढ़े है, किसी कसम से तुम कर ही नहीं सकते, किसी कसम से कहीं भी कर लोगे, चलो ठीक है, इसके साथ डील करना टफ हो जाएगा, और यही बताने वाला हूं, ठीक है, j डॉट n where j is the I enclosed or inside equal to integration j dot n dx ना, क्लियर, j dot n dx क्लियर। तो क्या क्या क्यू आर अरे लिख सकते हैं ना, ब्याज सेव ना, क्लियर, तो होगा, पहले इसके साथ डील करते हैं। So what? This is point P. This is point P. So we have to draw a loop na. And this is radius of the loop. So you have to orient the loop. Orient the your choice. So orient का loop. यानी कि loop अंदर की तरफ जा रहा है, loop ऐसा है, तो loop का डायरेक्शन है। So जिधर loop orient करोगे, that is the direction of dl. That is the direction of dl. So dl vector is in the direction of orientation of loop. So what? If your loop is oriented in this direction, so this is the direction of dl, and again if this is the conductor, b at this point will be what? Inside na? Inside na? Inside na? Clear? So dl is the direction of orientation, and d is what? Inward na? Inward na, both the अंदर, and also b is inward to what? Integration b dot dl equal to b dl cos of 0 integration b. Now deal this, j कुछ होगा अंदर, j करंट डेंसिटी होगा ना, और एरिया से ये मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो हो जाएगा। वेक्टर के साथ कैसे डील करना है? So j का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ j will be in the direction of current ना, j will be the direction of current, तो j will be what? अपवार्ड ना, ऊपर की तरफ जाएगा। Now there is area vector over here. ds n cap is the normal to the area ना, n cap is the normal to the area, तो दो नॉर्मल में मान लो ये लूप है, तो लूप का नॉर्मल, तो नॉर्मल जो होगा ना, ये लूप है तो ऊपर भी होगा, नीचे, यानी लूप है तो नॉर्मल ऊपर से उसका नीचे भी होगा, तो नॉर्मल क्या लेंगे? तो सबसे पहले ये कि जिधर ओरिएंटेशन है वैसे ही हम क्या करो, तुम ओरिएंट करो ऐसे, जिधर ओरिएंटेशन उधर ही काम करो हाथ को, हम किस द एन, अगर तुमने रोटेशन लिया तो एन किधर होगा? अपवर्ड। तो फॉर आवर केस एन इज अपवर्ड, तो क्या होगा? अब यह जाएगा j डॉट a, j डॉट n की स्पेसिफिक इंटीग्रेशन j डॉट n dx इज इक्वल टू हाँ j
ds ना, because ये is cos of 0 degree which is called j ds. कोई दिक्कत? अब क्या हो गया, हमने वेक्टर किसमें चेंज कर दिया, स्केलर में. अब लिखेंगे d ds इक्वल टू रिलेशन j. किसी ने if someone has changed orientation, किसी को कि what if I am changing the orientation, हमारी बात हम इधर कर लो, देख के इसको करो फिर बताता हूँ. तो इंटीग्रेशन b dot ds इक्वल टू म्यू नॉट j dot n d. So what? This is your line, this is point, you have to draw a loop. So what if your loop is oriented in this direction? Loop oriented नहीं है, इधर की तरफ, loop इधर oriented. Again, पहले इसको देखो, तो d किधर होगा? d will be outward and d will be upward. बोल में रहो, inward, d will be इनवर्ड ना. अबे इधर ओरिएंटेशन होगा, डीएल होगा इधर, डीएल इधर है ना, ओरिएंटेशन इधर, डी किधर होगा, करेक्ट से डी लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है, डी अंदर है इनवर्ड. नाउ थिंक अबाउट दैट. तो व्हाट जे विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ना, अपवर्ड, बट ए विल बी जिधर को पॉइंटर कर लो डाउन. So in between two theta equal to 180 degree and in between two theta equal to 180 degree. So what? Integration d dot ds equal to d dl cos of 180 degree equal to minus d dl integration j dot ds equal to j dl cos 180 degree and this is equal to j minus j dl ना. इनके बाद एक ऐसे इंटीग्रेशन d dl minus sign but j dl is minus sign implies d dl equal to j dl. दोनों सही आया, कोई दिक्कत? दे आर सेम ना, तो ट्वाइस इज योर, जैसे जैसे करना है इनको रिजल्ट मिलेगा. क्लियर? अब इसके साथ डील करना है इनको, तो ये j क्या होगा, j इज द करंट डेंसिटी ना, और एरिया क्या है, इसके एरिया लूप. अब लूप का एरिया का मतलब ये नहीं कि पूरा एरिया लेंगे, नहीं, जिस एरिया में करंट है उसी एरिया में. अगर पूरे लूप के अंदर करंट है, पूरे लूप वाले एरिया में करंट, तो पूरा लूप लेंगे. अगर आधा में है तो आधा. मान लो कि एरिया है और करंट डिस्ट्रीब्यूशन है और खाली नहीं है, तो खाली हम यही एरिया लेंगे, ये एरिया हम छोड़ देंगे. अगर लूप ये है एरिया में पूरे में करंट है तो हम पूरा एरिया लेंगे. तो एरिया लूप हैवी करंट, हैवी पूरे में हो तो पूरा लेना, आधे में आधा लेना. एंड दिस dl इज द लेंथ ऑफ लूप. अब पूरा dl का क्या होगा, अगर इंटीग्रेशन dl की बात करोगे खाली तो क्या होगा, ये होगा लेंथ ऑफ लूप, पूरा लेंथ होगा. अगर सर्किल है तो क्या लेंगे उसका सरकमफ्रेंस, और स्क्वायर का क्या लेंगे बाबू, स्क्वायर या रेक्टेंगल का लेंगे उसका पेरीमीटर. क्या लेंगे, ये डीएल लूप का थोड़ा सा लेंथ है और इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा, पूरे लूप का लेंथ है. इसी के साथ 2 पाई याद हो जाएगा. आ रही बात समझ? तो ये है तरीका डील करने का, ध्यान डील करोगे इजीली हो जाएगा. एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ. हाउ कैन यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर लॉ. कोई दिक्कत? तो दिस इज द वे टू डील विद एम्पियर लॉ. ये तरीका है. There is a nice way also. There is a nice way also, and you can also deal with that. Here, इसको करो फिर वो बता दो. And that is the easy one. क्या हुआ? B dot dl is equal to mu naught integration j dot n dl
या इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लूड। इसको कैसे डील करना है मैंने बता दिया। इसके साथ भी डील करोगे आसान है करना। कैसे डील होगा क्या कि करंट है कंडक्टर काबू। क्लियर? तो सीधा सीधा करना है कि बड़ी पॉइंट को फाइंड करना जरूर तो ड्रॉप हो गई। अब BL को DL एंड B को सेम डायरेक्शन में लेंगे। DL और B को सेम डायरेक्शन में देखना पड़ेगा किधर है। B किधर है? इधर ना। तो B इनवर्ट का DL इनवर्ट ले लेंगे। B इनवर्ट तो DL को क्या लेना है बाबू? इनवर्ट तो सिंपली क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 0। तो क्या होगा? ये इंटीग्रेशन B DL cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लूड ना इंटीग्रेशन B dl म्यू नॉट आई इंक्लूड। क्लियर? अब क्या हो गया? B फाइंड करना था। B को बाहर ले लो। क्या होगा? B इंटीग्रेशन dl इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लूड। अब dl क्या होगा? डेल था लूप और ये करंट क्या होगा? टोटल करंट इनसाइड द लूप। टोटल करंट इनसाइड द लूप। इजी है। इसमें फिर अपने चॉइस ले लेंगे जिधर मौजूद हो उसके कैसे जिधर मौजूद हो तो मन पर जाए। इसके क्या लेना है? जिधर भी उधर ये ले लो और सॉल्व करो आ जाए। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ एंड सॉल्व सम प्रॉब्लम।